Okay, we discussed the measurement, we discussed the mass weight density, we discussed the kinematics. Now we are discussing the force topic. Okay, now what is Newton's second law? F is equal to ma. Yes. Now in F is equal to ma Force. thingy, in F is equal to ma Yes. thingy, F is what? In F is Force. what? Force. M is what? Force. Mass. And Mass. A is what? Acceleration. Right? Yes. Yes. Yeah. Force is measured in newtons. Mass is measured in Hmm. kgs. And acceleration is measured G. in meters per second squared. Clear it? Yes. Next one, boy. Now, if you know the formula just using triangle, you can easily find the other quantity. F is equal to ma, m is equal to f over a is equal to f over Yeah. m. Yeah. Understand. Easy. Okay, that's good. That's good. Okay, Ji. Now, here's a question, for example. Calculate the acceleration produced by a force of 200 Newton on a mass of 4 kg. Now here, what is given to Uh, us? We are given to the force, we are given the mass, and we are going to calculate the acceleration. 800, right? 200 multiplied by 4 kg. Force is equal to mass times acceleration, right? Force, yeah, force is equal to mass time acceleration. So what अच्छा do you नहीं. find? Acceleration. Acceleration is equal अच्छा to F over acceleration m. है F over m. Yes. Hmm. तो हमारा होगा 50 50, exactly. acceleration 50 meters meter per square. second squared. Right, boy? जी. Okay, I'm sorry. Uh, now, next one, we did this one. Now, calculate the force that accelerates a mass of 300 kg from rest to 6 meters per second over a time of 3 seconds. How to do that? This one. Calculate the force that accelerates a mass 6 meters per second. Okay. Hmm. No, this, what is this? And what Uh, is this? 6 meters per second. No, sorry. Calculate the force that accelerates a mass of 600 kg. So we have mass from rest to 6 meters per second over a time period of 3 seconds. The rest का मतलब क्या 6 है? and 3 What is rest? from rest. When an object is not displaced, एक ही जगह पे जब होता है, Beta, right? beta, Does not beta. move. Rest means initial speed is 0 Okay. because you are starting from rest. So initial speed 0 है. What's the final speed? 6. 6. How much time was consumed? 3 seconds. 3 seconds. So first, now what is the formula for force? F is equal to, Acceleration time mass times acceleration. and how to find the acceleration? Acceleration में पर time दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है, तो हम लोग Yeah, plug in the values, find the acceleration, right? So how much is that? V is 6 minus 0 over 3. That is 6 over 3. That will give you 2, right? Isn't it 2 meters per yes. second squared? Now we'll plug this Yes. value in the formula. F is equal to 2 times 300. That goes to This should be 600 newtons. Any problem? no. Sure enough? Yes. No. Okay. So we go further. Yes. Okay. Now forces. Forces are of two types. Forces are of Two types. two types. Action forces and reaction forces. Okay. Okay. If action forces increase or are greater, then the object will accelerate. Yes. If reaction forces or resistive forces increase, then the object will decelerate. Okay. ठीक है ना, ये रूल याद रखिएगा. If the action forces are greater, or I mean say stronger, then the object will always accelerate. Okay. But if the resistive forces or the reaction forces are increasing, then the object will start decelerating. Yes, I understand. Good. Next चलते हैं बेटा इसको.
Now, there are three things that you have to keep in mind. One is called stopping distance, second is called thinking distance, and third is called braking distance. Now, what happens when a driver who is driving sees an obstacle in front of him? There's a driver in the car. He is driving at a speed of say 13 meters per second, for example, and he sees an obstacle. Yes. For example, उसको नजर आता है यार कि एक छोटा सा बच्चा एक बॉल के पीछे भागता हुआ आ रहा है. तो अगर वो ब्रेक नहीं लगाएगा तो he will smash, I mean say he will hit the boy, isn't it? Yes. तो वो क्या Yes. करता है? ब्रेक मारता है. देखिए ब्रेक मारने से पहले क्या करता है? Decides to brake. Yeah. He makes the decision to brake. And if Yeah. the resistive force of the brake is more than the accelerative force, then the car will stop. शाबाश Therefore, शाबाश. तो होता the क्या है बेटा? resistive force needs to be more. या होता क्या है? द टाइम दैट ही टेक्स फॉर थिंकिंग वो कितना होता है? बहुत ज्यादा या बहुत थोड़ा सा? बहुत कम, like within seconds वो decide करता है. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो उस टाइम में उसकी स्पीड चेंज होती है या वही रहती है? उस टाइम में उसकी स्पीड वही रहती है. वही रहती Like है. उसने एक्सीलेंट डिसाइड नहीं किया एक्सीलेंट. होता. या शाबाश. सो इफ आई जस्ट डू इट इन अ ग्राफ थिंगी, तो इट वुड बी दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस. ठीक है जी. और अज्यूम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो थी इनिशियल वो ये थी, इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था. ठीक है जी. इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट वाज मूविंग. क्लियर है? नाउ the driver sees the obstacle and decides to brake, but in that decision making time its speed remains constant, right? So this time Yes. इतना टाइम जो लगा इसको, ये t1 इसकी हम बात कर लेते हैं t1 की. इस टाइम में इसने क्या किया? He decides to apply the brake, right? Yes. And its speed remains constant in that, isn't it? Yes. Yes. Because it's a very short time. अब उसने क्या कर दिया? अब नाउ आफ्टर ही डिसाइडेड फिर वो एक्शन को टेक करेगा तो उससे Very good. रिड्यूस हाँ, तो इसकी स्पीड तो रेजिस्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी. बढ़ जाएंगी. तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा डिसेलरेट करेगा? डिसेलरेट करेगा. शाबाश. और डिसेलरेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन स्पीड और डिक्रीज इन स्पीड? डिक्रीज इन स्पीड. तो गुड नीचे की तरफ बॉय जाएगा. गुड बॉय. तो ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज इन स्पीड, डिसेलरेट करे. आई एम सॉरी, इट्स स्ट्रेट लाइन एक्चुअली. ठीक है. ऑब्जेक्ट की स्पीड डिसेलरेट करेगी, राइट? एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप हियर. It will stop here. Yes. Now, my question, what information you get when you find area under the graph? We find out the distance. Shabash. So if I find the distance under this much area, I mean say this much area in which the object was, the driver was thinking, तो इस distance को हम क्या Yes. कहेंगे? इतने distance को हम क्या कहेंगे? इतनी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, the distance covered Like- during the thinking process. Yeah. राइट. और इस वाले डिस्टेंस को विच इज अंडर द डिसेलरेशन थिंगी, इसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कवर्ड अंडर टेकिंग एक्शन. वेरी गुड वेरी गुड. तो अब हमने कहा कि दिस ब्लू पार्ट इज द थिंकिंग डिस्टेंस. इज व्हाट? थिंकिंग डिस्टेंस. थिंकिंग डिस्टेंस. एंड द ग्रीन पार्ट इज व्हाट? The Braking. action distance. Yeah, braking Yeah, distance, braking distance. when you applied the brake. Yeah. And the overall distance, overall is called stopping distance. Okay. The overall is called, Overall is called stopping. हाँ, means यहाँ से if you add these two, what you will get? Stopping distance. इस time Good duration boy. के अंदर उसने stop किया. Good boy. So far okay? Yeah. Any तो सर problem? हम लोग उन दोनों distances को subtract करेंगे, हमको कोई नहीं, value worth मिलेगी. नहीं, add करेंगे, आप add करेंगे. हाँ, ऐड करेंगे वो तो पता है, पर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना टाइम उसने इसमें लगाया था और कितना टाइम उसने उसमें लगाया था. राइट? नहीं. नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा. अच्छा जी. Now what are the forces that affect the stopping distance? मुझे बताओ stopping distance पे कौन सी फैक्टर फोर्सेस का इफेक्ट पड़ेगा? उसमें एयर रेजिस्टेंस अमाउंट पे असर First of all, reaction time. हाँ, रिएक्शन How much time? Yeah, how much time driver takes to decide? How much time driver takes to react?
Yeah, अब reactive मुझे बताओ forces. किसका रिएक्शन टाइम, किसका थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, एक्टिव ड्राइवर का या पैसिव ड्राइवर का? होल्ड अप, एक्टिव ड्राइवर का ज्यादा होगा ना, अगर वो ड्राइव कर रहा होगा थिंकिंग, उसका वो ही ज्यादा बी होगा। फोकस। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, फिर से बोलो। दे आर टू ड्राइवर्स। एक जो है वो बहुत एब्रप्ट है, ही टेक्स, अब्रप्ट। यानी बहुत जल्दी डिसाइड करता है। ओके। और एक है जो थोड़ा सा स्लो स्लो थिंकर है, स्लो डिसाइड डिसीजन मेकर है। हम्म। तो आपके ख्याल में जो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है वो ब्रेक जल्दी अप्लाई करेगा, देर से अप्लाई करेगा? जल्दी अप्लाई करेगा। तो उसका जो थिंकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? उसका कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो उस टाइम के अंदर डिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा? उस टाइम के अंदर डिस्टेंस कम होगा। कम हो जाएगा ना, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ, अ ड्राइवर विच इज वेरी मच अलर्ट विल गिव लेस थिंकिंग डिस्टेंस। या। ठीक है ना? हम्म। this will ठीक है ना? And thinking distance will increase यस if the driver is tired, distracted or has consumed alcohol or drugs. Means वो lazy है, वो means alert नहीं है। If the driver is not alert, वो थका हुआ है, वो active नहीं है, तो उसका सर। thinking distance बढ़ जाएगा। सर, बोलो yes। इफ यू आर स्मोकिंग व्हाइल ड्राइविंग, उससे आपकी कॉग्निटिव आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है, तो उससे वो इंक्रीज होगा, राइट? अब आप स्मोक कर रहे नहीं, it varies from person to person. हो। ओह। It अच्छा। varies from person to person. सेकेंड ओके। इज स्पीड ऑफ द कार। मुझे बताओ, अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो ब्रेक लगाते लगाते ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या अगर स्पीड कम है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? अगर उसकी स्पीड कम है तो उसको कम फोर्स चाहिए होगी, तो वो ज्यादा जल्दी अप्लाई कर पाएगा, राइट? या तो इट मींस इफ देन व्हीकल इज मूविंग एट अ हायर स्पीड तो उसका डिस्टेंस जो है ब्रेक लगाते लगाते भी काफी डिस्टेंस कवर कर जाएगी, तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इजंट इट? यस। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो नो मैटर ड्राइवर इज वेरी अलर्ट, इवन देन उसका डिसाइड करने में भी कार काफी आगे जा चुकी होगी, जी और ब्रेक लगाते लगाते भी कार काफी आगे जा चुकी होगी। तो स्पीड ऑफ द कार विल इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, विल अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। गॉट इट और नॉट? जी जी जी, को मोर फोर्स अप्लाई या करनी होगी। तो रिएक्शन टाइम भी अफेक्ट करता है आपके थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को, सर, राइट? रिएक्शन टाइम, फोर्स ऑफ द एक्सेलरेटिंग स्पीड, एंड एयर रेजिस्टेंस, विंड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये तीन चीजें मिला के हाँ। आपको वो करती है। या नंबर थ्री बेटा, मास ऑफ द कार एंड इट्स कंटेंट्स। ठीक है जी। इफ द कार इज मच मोर हैवियर, means there is a heavy load is means dumped in the car or in the vehicle, the greater the mass, जी। the greater will be the braking distance. तो आप मुझे बताओ, हैवी कार को अगर आप ब्रेक लगाओगे तो वो इमीडिएटली रुक जाती है, स्किड करती है? क्या कहते हैं, नहीं नहीं, स्किप करती है ऑब्वियसली। इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग द मास विल इंक्रीज द चांस ऑफ द ब्रेकिंग डिस्टेंस। यस। ठीक है ना? नेक्स्ट वन, कंडीशन ऑफ द रोड। किस रोड पे गाड़ी फौरन रुक जाएगी, रफ रोड के ऊपर या चिकने रोड के ऊपर? रफ रोड। रफ रोड पे, बिकॉज इट गिव्स मोर फ्रिक्शन। तो यस। so it means wet and icy or slippery road will increase the braking distance, right? यस। Conditions of the vehicle. A vehicle with worn out tires, worn out brakes, उसमें अच्छा डिस्टेंस कवर होगा उसमें, यानी कि वो जल्दी रुक जाएगी, या दूसरी वाली व्हीकल कौन सी? जल्दी ही रुक जाएगी वो। नहीं, जिसके नहीं ब्रेक नहीं नहीं, सॉरी, वो देर से रुकेगी, सॉरी। देर से रुकेगी तो इट विल इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस ना। जी। So these were the factors, right? Mass weight we have discussed, nothing else is left, we हम सब कर चुके हैं बेटा। पैराट्रूपर की एग्जाम्पल, अच्छा इसको देख लो एक दफा। नाउ व्हेन अ पैराशूटिस्ट जंप, तो ओके। एट द टाइम ऑफ जंप उसकी इनिशियल फोर्स जो एक्ट हो रही थी वो कौन सी होती है? इनिशियल फोर्स जो अप्लाई होती है वो क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस होती है, राइट? नहीं जो बेटा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि रेजिस्टिंग फोर्स या फिर एक्टिंग नहीं, द वो ओनली फोर्स वाली फोर्स? एक्टिंग एट दैट टाइम, द ओनली फोर्स विच इज द पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंस, वो क्या होती है?
Gravitational force. Very good. The pull of gravity means the weight. Yes. The first force that he experiences is the weight only. Agreed? Yes. Yes. Now, as he moves downward, जैसे जैसे वो मूव करता है डाउनवर्ड, उसकी स्पीड बढ़ती है कम होती है? Is the parachute open नहीं, अभी or नहीं, अभी closed? अभी अभी ओपन नहीं हुआ. वो increase करती है. So as the speed increases, so air resistance also increases. Drag force increases. Always remember, drag force. Yeah. Also increases. Drag force increases. Just one second. Right. So the drag force or the resistive force increases with the speed. Right. Yes. Now, velocity time graph of a parachutist. Now, what happens initially when he jumps? उसकी velocity, उसका force पे जो apply हो रही है वो weight है. Right. जी. एंड ड्यू टू वेट वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, उससे वो गिरता है. राइट. जी. बट विद इंक्रीज इन स्पीड उसके अंदर क्या होती है? एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होती है. ओके. और एयर रेजिस्टेंस उसकी स्पीड को बढ़ा देगी या कम कर देगी? सर कैन यू प्लीज रिपीट 2 मिनट? सॉरी मैं. एयर रेजिस्टेंस उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी? डिक्रीज करते. डिक्रीज कर देगी. तो उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. एंड दैट इज शोन बाय दिस ग्राफ. यू कैन सी हियर what is shown curving down. Yes. So this is decreasing acceleration. Yep. And I told you decreasing acceleration eventually ends up at a constant velocity, isn't it? जी. तो वो decreasing acceleration end up at a constant velocity जिसे आप क्या कहते हो? terminal velocity. क्या कहते हो इसको आप? Terminal velocity. शाबाश. And the point where he or she opens the parachute, whenever they open the parachute, they always feel a jerk, a sudden decrease in speed, an immediate jerk in the speed, like this one. जी. एकदम स्पीड सर डाउन थी. बोलो. दैट्स बिकॉज जब हम लोग पैराशूट का सरफेस एरिया ट्रैप्स एयर causing increase in बिल्कुल. wind resistance. Yes, very good, और उसकी very वजह से रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है. very good boy. And now the parachutists move with another constant speed called the second terminal velocity. ठीक है जी. And then it hits the ground. Yes. The graph is okay. जी, आई अंडरस्टैंड. क्योंकि हाँ, क्योंकि इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना? सर टर्मिनल वेलोसिटी तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, राइट? शाबाश. और कब होती है कांस्टेंट? अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस. याद रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए लाजमी है कि अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस. तो एक्शन फोर्सेस और रेजिस्टिव फोर्सेस इक्वल लेवल पे होंगी तो फिर बैलेंस हो जाएगा. शाबाश शाबाश. गॉट इट बॉय? यस. और कोई मसला बेटा? चलें, आज की क्लास में हम यहाँ स्टॉप करते हैं. ठीक है. ओके. और नेक्स्ट क्लास में हम इसके पास पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह ताला. सही है. ऑलराइट, फॉर दैट लॉन्ग बेटा, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Thanks for watching.